Good morning, students. How are you? I hope all of you are well. Today we have to learn about logarithms. What is logarithmic functions? Logarithms are related to the indices. As you know, 2 raised to the power 3, that is equal to 2 into 2 into 2 into 2, that is equal to 8. And we have given a base 2 with a power is 8. Then you have to ask to find the exponent. That means 2 raised to the power dash is equal to 8. And hence the exponent, that means the power that produces the value, is called as logarithms. Here 2 raised to the power 3 is equal to 8. So the exponent is 3. Exponent 3 is nothing but the log of 8 with a base value of 2. मीन्स ये जो 3 है, 3 हमारे पास क्या है, log 8 की वैल्यू है जिसकी बेस वैल्यू 2 है. It means in a logarithmic way we write 3 is equal to log 8 base 2. जो 2 है log के सबस्क्रिप्ट में लिखा है, ठीक है, और log 8 to the base 2 is equal to 3. In the same way, if we have 10 raised to the power 4 is equal to 10,000, then we can write log 10,000 to the base 10 is equal to 4. यानी कि ये जो पावर है 10 की पावर जो 4 है, 4 हमारे पास log 10,000 की वैल्यू है और बेस क्या है 10. In general way we can say that logarithmic functions can be written or denoted as log x base b is equal to n, or we can write b raised to the power n is equal to x. It means log function and exponential functions are reciprocal of each other. अगर log function given है तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. एंड नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी दिस लॉगरिथमिक एप्लीकेशंस. मीन्स लॉग कर रहे हैं तो उनको कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं. Logarithms are nowadays widely used in the field of science and technology. We can even find logarithmic calculators which have made our calculations much easier. These find its applications in surveying and celestial navigation purposes. They also used in calculations such as measuring loudness, intensity of the earthquake, in radioactivity decay, or to find the acidity, etc. And now, who invented this? Who introduced the logarithms? John Napier introduced the concept of logarithm in 17th century. Later it was discovered, it was used by many scientists, navigators, engineers, etc. for performing their various calculations which made it simple. यानी कि मेनली जो हमारे पास लोग हैं वो कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए यूज़ करते हैं. In simple words we can say that logarithms are the inverse process of exponential. यानी कि अगर हमारे पास log x base b is equal to n गिवन था तो हमारे पास क्या था, b raised to the power n is equal to x. तो इसलिए हमारे पास log और जो इन्वर्स फंक्शन है वो एक दूसरे के इन्वर्स प्रोसेस है. एंड नाउ log definitions. A log is defined as power
to which number must be raised to get some values. यानी कि log फंक्शन हमारे पास क्या है, पावर ही है, सिंपल. That means if we have given the large numbers, then we have to use log to express in a convenient way. A logarithm has various important properties that proves multiplication and division of logarithms can also be written in the form of logarithms of addition and subtraction. यानी कि बहुत बड़े बड़े नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न गिवन है तो हम उसको log की हेल्प से log की एडिशन और सब्ट्रैक्शन में राइट कर सकते हैं. एंड द log ऑफ ए पॉजिटिव रियल नंबर a, पॉजिटिव रियल नंबर यानी कि a इज़ ग्रेटर देन 0 विद रिस्पेक्ट टू द बेस b. ठीक है, और जो बेस b है दैट इज़ ए पॉजिटिव रियल नंबर नॉट इक्वल टू 1, यानी कि b इज़ ग्रेटर देन 0 है और b इज़ नॉट इक्वल टू 1 है. इज़ द एक्सपोनेंट यानी कि log ऑफ a इज़ द एक्सपोनेंट बाय विच b मस्ट बी रेज्ड टू यील्ड a. ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया कि जो b की एक्सपोनेंट है उस एक्सपोनेंट से जिसके b के पावर में अगर हम रेज करने से a के इक्वल आए, दैट इज़ नोन एज log. दैट मीन्स इफ वी हैव b raised to the power y is equal to a, then y is the log of a to the base b. Is it clear? And now we have logarithmic properties. There are 4 basic rules of logarithms. First one is log mn base b. Log mn, that means the product of two numbers और बेस b है. दिस कैन बी रिटन एज log m बेस b प्लस log n बेस b. यानी कि प्रोडक्ट गिवन है तो हम उसको सम में कन्वर्ट कर सकते हैं. इन दिस मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू लॉगरिथमिक वैल्यूज इज इक्वल टू एडिशन ऑफ देयर इंडिविजुअल लॉगरिथम्स. ठीक है, इसका जो प्रूफ है हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करके, क्योंकि log और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं. ठीक है, उसमें कन्वर्ट करके फिर एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम कर सकते हैं. ठीक है, पर अभी हम नहीं कर रहे हैं इसको, ओनली हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को ही कर रहे हैं और इसका आगे हमें यूज़ करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी हैव गिवन log 2y बेस 3, 2 into y यानी कि 2 टर्म्स है, वी कैन राइट दिस एज log 2 बेस 3 प्लस log y बेस 3. एंड नाउ इफ़ वी हैव log m by n, डिवीज़न ऑफ टू नंबर्स, बेस b इज़ इक्वल टू log m base b minus log n base b, and this is called the division rule. It means the division of two logarithmic values is equal to difference of each logarithms. यानी कि अगर जो डिवाइड के अंदर है वो हमारे पास डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा. For example, if we have given log 2 by y base 3 is equal to log 2 base 3 minus log y base 3. ठीक है, and now we have the exponential rule log m raised to the power n base b, that is equal to n log m बेस b. यानी कि ये जो हमारे पास पावर है, पावर पहले आ जाएगी log से, n log m बेस b.
ठीक है, दिस रूल इज नोन एज एक्सपोनेंशियल रूल और पावर रूल ऑफ logarithms. The logarithm of m with a rational exponent is equal to exponent times its logarithm. And now we have the base changing formula. In base changing formula we have log m base b, यानी कि अगर हमारे पास log m बेस b गिवन है, बेस b को हमें बेस a में कन्वर्ट करना है, देन वी कैन राइट दिस एज log m बेस b डिवाइडेड बाय log b बेस a. ठीक है, पहले log m बेस a जिस बेस में भी कन्वर्ट करना है उसको हम राइट कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय log b बेस a. ठीक है, दीज आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ log विच वी कैन यूज इन कैलकुलेशंस, दैट बिकम्स द वेरी easy. And now some main points. Logarithm is defined only for positive real numbers. The first condition, it is defined only for positive real numbers. It means the domain of log function is the 0 to infinity, either positive real numbers. ठीक है, नेक्स्ट वन इज log 1 to the base b. log 1 की वैल्यू कोई भी बेस हो वो हमारे पास 0 के इक्वल होगा. ठीक है, जहाँ पर भी आप log 1 देखोगे उसको आप 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. और log a to the base a, that is equal to 1. ठीक है, यानी कि log a बेस a दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए. जिसका हम log फाइंड करें और बेस दोनों सेम है तो उसकी वैल्यू 1 होगी. वेयर a इज पॉजिटिव रियल नंबर एक्सेप्ट 1. ठीक है, क्योंकि log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है. ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है वेयर a इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर एक्सेप्ट 1. 1 को छोड़कर बाकी जितने भी नंबर्स हैं log a बेस a इज इक्वल टू 1. द logarithm of the base 10 are called common logarithms. यानी कि अगर बेस 10 लिखा है तो वो कॉमन लॉग है. इफ़ नो बेस इज गिवन, अगर कई बार ऐसा लिखा होता है log 2, कोई बेस गिवन नहीं है. ठीक है, तो उसका मतलब है कि जो बेस है वो हमेशा क्या होगा, 10 होगा. दैट मीन्स log 2 इज इक्वल टू log 2 बेस 10. ओके, एंड नाउ वी हैव log x इज इक्वल टू log y टू द बेस a, यानी कि log x बेस a log y बेस a, बेस सेम है, देन वी कैन राइट x is equal to y. Is it clear? And now we have logarithmic examples. First one is log 64 base 2. We have to solve this. log 64 यानी कि अब 64 के फैक्टर्स बनाइए. वो हमारे पास क्या होता है, 2 raised to the power 6. 2 raised to the power 6 is equal to 64. ठीक है, अब ये जो 6 है, 6 इज द एक्सपोनेंट वैल्यू. 6 पावर है, इट मीन्स log 64 बेस 2 इज इक्वल टू 6. इट मीन्स आंसर इज हियर 6. एंड नाउ सेकेंड वन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 100 बेस 10. अब log 100 की वैल्यू क्या होगी, तो 100 के फैक्टर्स बनाओगे. 100 के फैक्टर्स बनाओगे तो बेस हमारे पास 10 होना चाहिए. जैसे 64 में बेस 2 था, यहाँ पर 100 में क्या होगा, बेस 10, तो 100 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर. इट मीन्स log 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2. ठीक है, दैट मीन्स 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100. 2 इज द एक्सपोनेंट वैल्यू,
It means log 100 base 10 is equal to 2. Is it clear? And now we have use the properties of logarithms. Solve for the value of x. Log x base 3 is equal to log 4 base 3 प्लस log 7 base 3. ठीक है, अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. राइट हैंड साइड में देखिए, राइट हैंड साइड में बीच में क्या है, प्लस साइन. ठीक है, प्लस साइन है तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में. यानी कि कन्वर्ट हो जाएगा log 28 बेस 3. ठीक है, log 4 बेस 3 प्लस log 7 बेस 3 इज इक्वल टू log 4 इंटू 7 बेस 3 log 28. इट मीन्स अब इसको हम कंपेयर करें तो कंपेयर करने से हमारे पास क्या होगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 28. ओके, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास log x बेस 3 गिवन है और राइट हैंड साइड हमारे पास आ गया log 28 बेस 3. इट मीन्स x इज इक्वल टू 28. Is it clear? And now we have solve for x. Log x base 2 is equal to 5. यानी कि अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पर ओनली 5 गिवन है, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. इट बिकम्स 2 raised to the power 5 इज इक्वल टू x. ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 2 raised to the power 5, that is equal to 32. Is it clear? Now we have the next question. Compute log 27 base 9 minus log 9 base 27. ये किसके इक्वल है. अब इसमें हमारे पास बेस क्या है, दोनों का चेंज है. अगर दोनों का बेस सेम होता तो हम क्या करते, log 27 बाय 9 यानी कि log 3 आ जाता अगर बेस सेम होता तो. अब यहाँ पर बेस चेंज है दोनों में, एक में बेस 9 है, दूसरे में बेस 27 है. ठीक है, इसलिए पहले हम बेस चेंजिंग फॉर्मूले से इसको किसी एक को चेंज करेंगे. ठीक है, तो हम किसको चेंज करें, तो हम फर्स्ट वाले स्टेप में पहले इसको लिख रहे हैं 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 पावर 3 और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर. ठीक है, और एक्सपोनेंशियल रूल के अकॉर्डिंगली पावर्स पहले आ जाएंगी. देन इट बिकम्स 3 log 3 बेस 9 माइनस 2 log 3 बेस 27 एंड देन वी हैव ये जो फर्स्ट टर्म है log 3 बेस 9, इसको हमें चेंज किया हमने बेस 3 में चेंज किया तो हमारे पास क्या होगा, log 3 बेस 3 डिवाइडेड बाय log 9 बेस 3. ठीक है, बेस चेंजिंग फॉर्मूला था ना, log m बेस b इज इक्वल टू log m बेस a डिवाइडेड बाय log b बेस a. तो हम उसका यूज़ करके हमने इसको चेंज किया. और log 3 बेस 3 इसकी वैल्यू क्या होती है, 1. वही नंबर और बेस सेम हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है. ठीक है, देयरफॉर वी हैव टू राइट log 9 बेस 9 log 3 बेस 9 इज इक्वल टू 1 बाय 9 बेस 3. ठीक है, और ये जो log 27 log 3 बेस 27 है उसको भी हम सेम इसी मेथड से चेंज करेंगे तो वी गेट log 27 बेस 3. ठीक है, अब हमारे पास बेस दोनों का सेम है. देन वी कैन राइट दिस एज, पहले इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर log 9 है, log 27 है. log 9 यानी कि 3 स्क्वायर. ठीक है, तो पावर रूल के अकॉर्डिंगली हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 log 3. देन इट बिकम्स 3 इंटू 1 बाय 2 log 3 बेस 3
माइनस 1/3 log 3 बेस 3। अब ये जो 3 कैसे आया, 27 क्या होता है 3⁻3, तो इसीलिए ये 3 हमारे पास आया हुआ है। ठीक है, अब log 3 बेस 3 इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो इसकी वैल्यू 1 सब्सिट्यूट कर दीजिए। यू विल गेट 3/2 माइनस 2/3 and then simplify this. You will get 9 minus 4/6, that is equal to 5/6. It means log 27 base 9 minus log 9 base 27 is equal to 5/6. Is it clear? And now we have the next example. Log x base 8 plus log x base 4 plus log x base 2 is equal to 11. We have to solve. Solve means we have to find the value of x. So we have to write in this form 1 by log 8 base x by base changing formula. यानी कि अगर हमें log और बेस को चेंज करना हो तो इसको हम राइट कर सकते हैं log 8 बेस x, और log x बेस 4 को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय log 4 बेस x, और log x बेस 2 को 1 बाय log 2 बेस x, that is equal to 11, that is given here. And now we can write this as, अब ये जो 8 है 8 को हम क्या लिखेंगे 2⁻3। ठीक है, तो फिर पावर रूल के अकॉर्डिंगली 3 पहले आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/3 log 2 बेस x, और 4 हमारे पास क्या होता है 2 स्क्वायर, इसलिए उसको हम लिख रहे हैं 1/2 log 2 बेस x प्लस 1/log 2 बेस x इज इक्वल टू 11। अब देखिए तीनों ब्रैकेट्स के अंदर log 2 बेस x तीनों ब्रैकेट्स के अंदर है, इसको कॉमन ले लीजिए, देन इट बिकम्स 1/log 2 बेस x इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। ठीक है, अब 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 11/6। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया, यू विल गेट इक्वल टू 11, एंड देन इट बिकम्स log 2 बेस 1/log 2 बेस x इंटू 11/6 इज इक्वल टू 11, एंड देयरफॉर 1/log 2 बेस x इज इक्वल टू 6, and then you can write this as by cross multiplication log 2 base x is equal to 1/6. It means 2 is equal to x power 1/6, यानी कि इसको हमने किस फॉर्मूले से किया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके बाय डेफिनेशन इसको राइट किया। log 2 बेस x इज इक्वल टू 1/6 को हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली लिखा है 2 इज इक्वल टू x पावर 1/6। ठीक है, नाउ टेकिंग पावर 6 ऑन बोथ साइड्स इट बिकम्स 2 पावर 6 इज इक्वल टू x। अब हमने पावर 6 क्यों लिया, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, यहाँ पर 6th रूट गिवन था x का, तो इट मीन्स x इज इक्वल टू 2 पावर 6, दैट इज आंसर। 2 पावर 6 इज 64। Is it clear? Any doubt? Okay, अगर कोई डाउट है तो मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए, डाउट सेक्शन में भेज दीजिए और या फ़ोन पे कांटेक्ट कर लीजिए। बेस्ट तो यही रहेगा कि आप डाउट सेक्शन में भेज दीजिए। ठीक है, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपना होमवर्क सबमिट नहीं कराया। अपना होमवर्क सबमिट कराइए, क्योंकि इसी के बेस पर आपकी असेसमेंट के मार्क्स लगने हैं।
ओके, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।